Hello everyone. So today this session is especially focused on the mountains across the world. So what I'll do today, again the same map system. I'll follow the maps. I've already marked the mountains. I'll name them and I'll tell you about the some of the facts about them. Right. And next thing, what I want to tell you that I have divided the mountains across the continents. So continents के हिसाब से मैंने माउंटेन्स को अलग अलग दिखाया है तो right. So what I'm doing is I have five continents today: North America, South America, Africa, Europe, and Asia. I'll try to cover all of them today, but if time goes out, I'll take one more session or the session tomorrow for covering all the mountains. So starting with the North America, I'll start with North America. Right, this is North America. If you can identify, this is United States, and above this, the north of United States, this is Canada, right? And on the northwest, this is Alaska. ठीक है, तो ये इधर में पैसिफिक है और इधर में अटलांटिक है, right? So I hope you can recognize the area. Now, starting with North America, मैकेंजी माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ अलास्का, और उसके जस्ट अगर आप नीचे देखेंगे तो एक अलास्का का ऐसे आर्क निकला हुआ है. देयर इज Aleutian Range. Mackenzie Mountains are named after a traveler, Lord Mackenzie. Right, so he was traveling towards north, and then he went to Canada. Right, so he started traveling. He actually was discovering Rockies. Right, so he was the first one to cross Rockies. तो वो पूरा Rockies क्रॉस कर जाते हैं और उसके बाद चलते चलते अलास्का पहुंच जाते हैं. तो वहां पर he just saw this mountain range, and this mountain range is named after him only. So Mackenzie Mountains in the north of Alaska. Right, then there is a small range over here in the north east of Alaska, that is Brooks Range. Brooks Range. ठीक है, so this Brooks Range is there. It's in northern Alaska, and ये east west range है, same as Mackenzie Mountains. उसके नीचे में यू हैव दिस पोर्शन, दिस इज होल ऑफ अलास्कन रेंज. ये सारा अलास्कन रेंज है और ये Aleutian रेंज है. ठीक है, इस Aleutian रेंज को आप पैसिफिक माउंटेन सिस्टम भी बोलते हैं. पैसिफिक माउंटेन सिस्टम. and Mount McKinley, here it is, Mount McKinley. It is the highest peak of North America in Alaska, Mount McKinley, which is in the Alaskan range. ये Mount McKinley Alaskan range में ही है. It is the highest peak of North America in Alaska range. Okay, now coming downwards, we have Western Cordillera. वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा में आपको बता देता हूँ, कॉर्डिलेरा बोलते हैं सम एक्सटेंसिव माउंटेन रेंजेस जो अक्रॉस द कॉन्टिनेंट ट्रैवल करती हैं, जो ऑलमोस्ट पूरे कॉन्टिनेंट को कवर कर लेती हैं. इतनी एक्सटेंसिव होती हैं, इतनी लंबी रेंजेस होती हैं, उनको हम जनरली कॉर्डिलेरा बोलते हैं. सेम इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव अ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. एक कॉर्डिलेरा मतलब उसमें बहुत सारी रेंजेस हो सकती है अलग अलग, बट कंबाइन करके उसको कॉर्डिलेरा बोलते हैं. तो जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है इन द नॉर्थ अमेरिका, वी हैव दिस पर्टिकुलर वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोस्ट को कवर कर रहा है. अगर आप कोस्ट पे देखेंगे तो जो ये पिंक हाईलाइटेड एरियाज हैं, यहाँ वाले, ये वाले, राइट, दिस इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. अब वेस्टर्न कॉर्डिलेरा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, and this particular mountain range also is part of western cordillera, which is running parallel to these coastal ranges. Okay, and this is Rocky Mountains. So I've combined these the Rocky Mountains and the coastal ranges, and we are calling this as western cordillera. ठीक है, तो coastal range में सबसे पहले आती है coast range, which starts from the Alaska के south east से start करते हैं, and coastal mountains are there.
और कोस्टल माउंटेन्स कनाडा में ही खत्म हो जाती हैं. दिस इज द बाउंड्री ऑफ कनाडा ओवर हेयर. यहाँ पर तो कोस्ट रेंज जो है वो कनाडा में खत्म हो जाती है. इट इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. उसके नीचे आती है कास्केड रेंज. इट इज अ लॉन्गर वन. कनाडा के बॉर्डर से स्टार्ट होती है एंड इट फिनिशेस ओवर हेयर द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द स्टेट ऑफ ओरेगॉन. सो ओरेगॉन जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहां तक ये चलती है आपकी कास्केड रेंज. इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा. उसके नीचे से स्टार्ट होती है रेंज सियरा नवाडा. सियरा नवाडा starts from the lowest point or the northernmost point of the state of California और पूरे कैलिफोर्निया में ट्रैवल करती है सियरा नवाडा. ठीक है, तो ये पार्ट है कोस्ट के माउंटेन्स का. दीज आर नॉट रॉकी माउंटेन्स. ओके, ये हैं कोस्टल माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका और ये पार्ट है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के. अभी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का जो तीसरा पार्ट है आफ्टर सियरा नवाडा इज द रॉकी माउंटेन्स. दीज आर द रॉकी माउंटेन्स, the longest range of mountains in North America, starting just on the borders of Brooks Range. Brooks Range की just पास से start होंगे. इसके अपर जो पोर्शन है उनको हम बोलते हैं एंडीकॉट रेंज. जो रॉकी माउंटेन्स का अपर पोर्शन है उसको आप बोलेंगे एंडीकॉट रेंज और उसके नीचे से यू जनरली कॉल देम रॉकी माउंटेन्स. ठीक है, तो रॉकी माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट होकर एंड दे ट्रेवल अप टू द मैक्सिकन प्लेट्यू. दिस इज मैक्सिकन प्लेट्यू. अगर आप नीचे देख पा रहे हैं मैक्सिकन प्लेट्यू इन द गल्फ, नियर द गल्फ ऑफ मेक्सिको. मेक्सिको जो कंट्री है उसके अंदर में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है दिस इज मैक्सिकन प्लेट्यू. वहां तक जा रहे हैं आपके रॉकी माउंटेन्स. राइट नाउ लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट रॉकी माउंटेन्स. सबसे पहले तो जो ईस्ट में है ये कास्केड रेंज और कोस्ट रेंज के जो ईस्टर्न माउंटेन्स हैं वो सारे रॉकी माउंटेन्स हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नॉर्थ अमेरिका in the states of US and Canada, they are coming out of or they have the origin in the Rocky Mountains. ठीक है, rivers like Arkansas river, rivers like Missouri, right? All these rivers, Athabasca river, Mackenzie in Canada, Mackenzie जो longest river है Canada की, it is also coming out of Rocky Mountains. Arkansas is coming out of Rocky Mountains over here in the state of Wyoming, Montana. राइट और भी रिवर्स हैं लाइक प्लाते. तो ये सारी जो बड़ी बड़ी प्रमुख नदियां हैं जो आगे जाकर मिसिसिपी का ड्रेनेज बनती हैं और बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो इन लेक्स में जाकर मिल जाती हैं. द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, ये जो सारे लेक्स हैं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, ऑन्टारियो, सुपीरियर, ऑल दीज लेक्स इंपॉर्टेंट लेक्स. सो यहाँ पे भी जाकर कई सारी नदियां मिलती हैं और जो इम्पोर्टेंट रिवर है विच इज मिसिसिपी उसका ये ड्रेनेज बनती है. तो ऑल दीज रिवर्स आर कमिंग लाइक दिस आउट ऑफ रॉकी माउंटेन्स. Now, next thing we'll come to the South America. Okay, this is equator. यहाँ पे equator जा रहा है from the state of Ecuador, Colombia and Brazil. ठीक है, तो साउथ अमेरिका में कहाँ से इक्वेटर पास होता है? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. राइट, सो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स अगेन दिस इज कॉर्डिलेरा. आप इसको भी कॉर्डिलेरा बोल सकते हैं. दीज आर द कॉर्डिलेरास ऑफ एंडीज माउंटेन्स. एंडीज माउंटेन्स इन साउथ अमेरिका स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ वेनेजुएला. ठीक है, covering almost all the major countries of South America, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia, Argentina, right? और नीचे तक जा रहा है. So these are Andes Mountains, the longest mountain chains of South America. Okay, these are also known as Western Mountains. इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. Central Cordillera, which is important in Ecuador, Central Cordillera. Then Cordillera Occidental,
देन कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कॉर्डिलेरा ओरिएंटल दोनों बोलीविया के नॉर्थ साउथ बॉर्डर्स पे है, यानी नॉर्थ बोलीविया में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है और साउथ बोलीविया में कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है, ठीक है, पार्ट ऑफ सेम एंडीज माउंटेन्स। ओके, माउंट एकोनकागुआ, राइट, so it's a kind of extinct volcano. I'll write over here. ठीक है, it's in Argentina, Mount Aconcagua, the part of Andes Mountains. It's a extinct volcano and the height is more across almost 7 kilometers, or you can write 6,900 meters. It's quite high. ठीक है, क्वेश्चन एक और बन सकता है कि एंडीज किस किस कंट्री का पार्ट है, यानी किस किस कंट्री से एंडीज होकर गुजरते हैं। सो यू कैन आंसर लाइक दिस, यू कैन काउंट द कंट्रीज। वेनेजुएला इज देयर, ठीक है, कोलंबिया इज देयर, इक्वाडोर इज देयर, देन वी हैव पेरू, बोलिविया, okay, then Chile and Argentina, right? So you must remember all these nations जहां से the Andes mountains they cover up, ठीक है। इक्वाडोर में there is important mountain which is Mount Chimborazo, ठीक है, it's in Ecuador, Mount Chimborazo, and the Mount Ojos del Salado. It's the highest active volcano in Argentina. Mount Ojos del Salado, right? So highest volcano in the world, it is in Argentina, highest volcano. Okay, so और भी बहुत सारे हाईलैंड्स हैं, अगर हम देखेंगे तो बोलिवियन हाईलैंड्स हैं, देन वी हैव गायना हाईलैंड्स, यहाँ पर स्टेट ऑफ गायना इज देयर, गायना एंड सूरीनाम दो देश हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हाईलैंड्स हैं उनको गायना हाईलैंड्स बोलते हैं। देन वी हैव द ब्राजीलियन हाईलैंड्स आर देयर, ऊपर ही में ब्राजीलियन हाईलैंड्स जो एकदम डार्क ग्रीन दिख रहा है आपको यहाँ पर, दोज आर ब्राजीलियन हाईलैंड्स। देन वी हैव ग्रांड चाको। ग्रांड चाको इज बेसिकली जस्ट साउथ ऑफ बोलिवियन प्लेटू, जहां पर आपको पराग्वे दिख रहा है, पराग्वे इन अर्जेंटीना, दिस इज ग्रांड चाको। द ग्रासलैंड्स हैं बेसिकली, ओके, सो डेजर्ट ये जो येलो कलर में है, दिस इज पैटागोनियन यहाँ पर, बट दोज थिंग्स आई विल डिस्कस इन सम अदर सेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही थे, बोलिवियन प्लेट्यू है, ठीक है, और जो एंडीज हैं सबसे ब्रॉड यहीं पर होते हैं, सबसे ब्रॉड जो होते हैं एंडीज, तो यहीं पर होते हैं बोलिवियन प्लेट्यू पे। देन वी हैव एटाकामा डेजर्ट, तो बट दोज थिंग्स विल सी इन अदर सेशंस। यहाँ पर चिली पे बिल्कुल यहाँ के, दिस इज कोस्टल डेजर्ट एटाकामा, राइट। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट मैप विल डिस्कस इज द मैप ऑफ अफ्रीका। अभी अफ्रीका का मैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ starting from the north of Africa, first we have Atlas Mountains in Africa. Atlas Mountain cover the northwestern part of Africa, जहां पर countries like Western Sahara, Morocco, Tunisia, right, तीन देशों का important एक coastal mountains हैं Atlas Mountains, ठीक है। इस region को हम बोलते हैं, जहां पर ये mountains हैं उसके नीचे, this region is actually called the Maghreb, right? So this is Maghreb, ये पूरा जो रीजन है ये मगरेब का रीजन है, ठीक है। तो मगरेब रीजन में बहुत सारे देश आ गए, जैसे लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, वेस्टर्न सहारा, एंड दिस इज होल ऑफ सहारा डेजर्ट, ये पूरा जो येलो पोर्शन है टचिंग द
द बाउंड्रीज ऑफ नाइजीरिया, ये यहाँ तक, ठीक है। देन चाड इज देयर, माली, राइट, ऑल दीज कंट्रीज, इवन घाना के एरियाज तक आपका सहारा डेजर्ट है। तो नॉर्थ में एटलस माउंटेन्स है। एटलस माउंटेन्स के 5 पोर्शंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट इज एंटी एटलस, सेकंड इज हाई एटलस, थर्ड वन इज मिडिल एटलस, फोर्थ इज सहारा एटलस एंड द फिफ्थ वन इज मैरीटाइम एटलस। मैरीटाइम वो सारे एटलस माउंटेन्स मैरीटाइम होंगे जो कोस्ट को टच कर रहे हैं, राइट। दीज आर मैरीटाइम एटलस माउंटेन्स, ठीक है। तो कोई एक खास जगह पे मैरीटाइम एटलस नहीं है, इनको आप टेल एटलस भी बोलते हैं, ठीक है। सहारा एटलस जो अल्जीरियन नॉर्थ अल्जीरिया में है, दोज आर सहारा एटलस, उनको सहारा एटलस बोलते हैं। हाई एटलस बिल्कुल मिडिल एटलस है, जिनको आप हाई, यहाँ पर हाई एटलस है, ये मिडिल एटलस के बाजू में, ठीक है। तो मिडिल एटलस ये वाला एटलस है, राइट। ये एटलस माउंटेन्स आर मिडिल एटलस। हाई एटलस, यहाँ पर हाईएस्ट पीक्स हैं एटलस माउंटेन्स की, जस्ट द मिडिल पोर्शन ऑफ मोरक्को, इट इज हाई एटलस। और मोरक्को और वेस्टर्न सहारा के बॉर्डर्स पर यू हैव एंटी एटलस। Okay, those 5 separate ranges in Atlas. Okay, anti, high, middle, Sahara, and maritime. Okay, Atlas mountains are the examples of fold mountains. These are fold mountains. Okay, highest जो peak है that is Mount Bel Tubkal. It is in the high Atlas. Mount Bel Tubkal. Okay, so this Mount Bel Tubkal is in high Atlas. That is why it is called high Atlas. ठीक है। सो दीज आर फोल्ड माउंटेन्स। और उसके अलावा यू हैव एथोपियन हाईलैंड्स इन एथोपिया। बहुत हाइट तो नहीं है, बट पार्ट ऑफ द रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यहाँ से होकर गुजरती है, जो नाइल की रिफ्ट वैली जिसको हम बोलते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला इन इजिप्ट, और उसके बाद नीचे तक जा रही है टिल मोजाम्बिक, यहाँ तक। सो कोस्ट, द बॉर्डर्स ऑफ तंजानिया, कीनिया, साउथ सुडान, सुडान एंड इजिप्ट, तो ये सारे कवर करती है रिफ्ट वैली। और जो उसका ईस्टर्न पार्ट है दैट इज इथोपियन हाईलैंड्स, रिफ्ट वैली का, ठीक है। तो इथोपियन हाईलैंड्स आप मार्क कर सकते हैं। द हाईएस्ट पीक इज रास देशान, रास दशान, ऑल्दो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक रास दशान, राइट। सो जो ब्लू नाइल रिवर है, इट फ्लोज थ्रू द इथोपियन हाईलैंड्स, right? So Blue Nile River, you can write Blue Nile, right? It's a tributary of Nile River. It flows through the Rift Valley, और इसको ब्लू नाइल रिवर बोलते हैं, और ये एथोपियन हाईलैंड से ही निकलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन आई विल टेल यू इज माउंट किलिमंजारो। इट्स इन तंजानिया, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम इक्वेटर, ये इक्वेटर है, यहाँ से 300 किलोमीटर पे है माउंट किलिमंजारो। एटलस माउंटेन्स में हाईएस्ट माउंटेन नहीं है अफ्रीका का, माउंट किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक। इट्स अ वोल्केनिक माउंटेन, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। इसको माउंट कीबो भी बोलते हैं, माउंट कीबो, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से बस 300 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये इसके पीक्स जो हैं वो परपेचुअल स्नो कवर्ड रहते हैं, यानी पूरे साल स्नो से ढके रहते हैं। और ये कुछ जिसको बोलते हैं हम ऑल्टीट्यूड विंस ओवर लैटिट्यूड, यानी ये ऑल्टीट्यूड की विक्ट्री है लैटिट्यूड के ऊपर। डिस्पाइट बीइंग सो क्लोज टू इक्वेटर, इज स्टिल स्नो कवर्ड माउंटेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड जो है वो लैटिट्यूड से जीत रहा है, इसलिए स्नो कवर्ड है, इतना हाई अल्टीट्यूड है कि स्नो कवर्ड माउंटेन्स है डिस्पाइट ऑफ बीइंग क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है। जो इसका जो पूरा माउंटेन के जो फुट हिल्स हैं, वहां पर कॉफी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, नोन फॉर growth of coffee, Mount Kilimanjaro. It's an extinct volcano. It's an extinct
volcano. Right. एक और चीज इंपॉर्टेंट, माउंट किलिमंजारो इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रेंज, इट्स अ स्टैंड अलोन माउंटेन, इट्स अ स्टैंड अलोन वोल्केनो, इट्स नॉट पार्ट ऑफ एनी रेंज. ठीक है, तो दिस इज माउंट किलिमंजारो. नेक्स्ट, इन द साउथ ऑफ अफ्रीका देयर इज अ कंट्री कॉल्ड लेसोथो, और वो पार्ट है ड्रैकन्सबर्ग स्कार्पलैंड का. सो इट इज अ काइंड ऑफ अ हाईलैंड, स्कार्पलैंड जिसको बोलते हैं, हाईलैंड्स विद लिटिल लोलैंड्स बिटवीन देम. तो ऑल्टरनेट जब लोलैंड्स और फिर हाईलैंड्स और फिर लोलैंड्स होते हैं तो उनको आप स्कार्पलैंड्स बोलते हैं. जनरली ड्यू टू दी denudation topography or the weathering of high hills and high mountains, you what you get later on is scarplands, जहाँ पर माउंटेन्स है उसके बाद ऑल्टरनेटिवली लोलैंड्स होंगे, फिर हाई हिल्स होंगी, फिर लोलैंड्स होंगे, इस तरह के प्लेन्स होते हैं. सो दोज आर स्कार्पलैंड्स. तो दोज काइंड ऑफ हाईलैंड्स आर कॉल्ड स्कार्पलैंड्स. सो ड्रैकन्सबर्ग स्कार्पलैंड is in South Africa and Lesotho. Lesotho साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट है लेसोथो. तो ड्रैकन्सबर्ग स्कार्पलैंड is there, right? So this was, then Mount Sinai is also there in Sinai Peninsula in Egypt. So Sinai is in Egypt. This is Sinai Peninsula. You can see this. This is Sinai, and here it is Mount Sinai. इसके अलावा there are not too much mountains in the African continent. Okay, so this was it, and next we'll go to the Europe. ठीक है, तो अगला यूरोप है. यूरोप में काफी कुछ है देखने के लिए. So I'll start with the northernmost point. Okay, in Sweden, Norway, the Scandinavian countries, first of all. So स्वीडन के नॉर्थ और नॉर्वे के नॉर्थ से यहाँ से निकल रहा है जस्ट माउंटेन कॉल्ड जोलिन माउंटेन्स. के से स्टार्ट होते हैं, जोलिन माउंटेन रेंजेस, राइट. सो जोलिन रेंजेस, इसका मेजर जो भाग है वो नॉर्वे में आता है, बट हाँ, नॉर्थ जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जोलिन रेंजेस का, वो स्वीडन और नॉर्वे दोनों को टच कर रहा है. सो जोलिन रेंजेस. उसके बाद, and it also is a natural boundary between Sweden and Norway. उसके बाद नीचे आते हैं, नॉर्थ सी दिख रही होगी आपके, यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड. ठीक है, so the mountain ranges which are central to the United Kingdom are Pennine mountain ranges, the central uplands of Great Britain, Pennine यहाँ पर, right. Next are the Black Forest of Germany, east west mountains हैं, Black Forest of Germany. These are the block mountains. ये block mountains हैं. ठीक है, these are block mountains, Black Forest. Block mountains मतलब नॉट फोल्ड माउंटेन्स, जो फोल्डिंग से नहीं बनते हैं, फॉल्टिंग से ज्यादातर बनते हैं. फॉल्ट बीच में से अलग होता है तो एक स्टीप स्लोप बन जाता है. ठीक है, तो फॉल्ट्स की वजह से जो बनते हैं दोज आर ब्लॉक माउंटेन्स. सो ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी, बिल्कुल साउथ में जर्मनी के हैं ब्लैक फॉरेस्ट. फिर देखते हैं फ्रांस का जो ईस्टर्न बॉर्डर है और जो जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर है, वहां पर रेंजेस हैं वोजेस, राइट, VOSGES. सो यू कैन मार्क, अगर आपको डार्क ग्रीन कलर का फ्रांस के ईस्ट में और जर्मनी के बॉर्डर्स पे दिख रहा होगा तो दोज आर वोजेस. इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज राइन रिवर रन्स अक्रॉस दीज वोजेस माउंटेन्स. तो राइन रिवर जो है इसके अलोंग ऐसे ऐसे चलती है, राइट, एंड देन इट गोज टू बेल्जियम और फिर नीदरलैंड, और नीदरलैंड में जाकर अपना डेल्टा बनाती है राइन रिवर. राइन रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम एल्प्स. यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एल्प्स दिखे हुए हैं, तो एल्प्स से स्टार्ट करती है और वहां से स्टार्ट करके एल्प्स में भी जेनेवा में लेक कॉन्स्टेंट है, लेक कॉन्स्टेंस है, वहां से स्टार्ट करके और सीधा पहले वेस्टर्न टर्न लेती है और उसके बाद फिर एक और बार वेस्टर्न टर्न लेती है. फ्रांस में नहीं एंटर करती है राइन रिवर, जर्मनी में ट्रैवल करती है बहुत ज्यादा, उसके बाद बेल्जियम, देन नीदरलैंड्स और फाइनली अपने डेल्टा पे जाती है. ठीक है, तो एल्प्स से स्टार्ट करती है, इसलिए वोजेस जो है
काइंड ऑफ वाटरशेड है राइन रिवर के लिए, और राइन रिवर को फ्रांस की तरफ नहीं जाने देते हैं, तो वोजेस आर द माउंटेन रेंजेस बिटवीन, एंड इट्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. देन वी हैव एल्प्स ओवर हियर. एल्प्स, स्विट्जरलैंड यहाँ पर है. दिस इज स्विट्जरलैंड. एल्प्स आर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया ऑल्सो, यहाँ पे ऑस्ट्रिया का भी पार्ट है. एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट फ्रांस and parts of Italy also. This is Italy, right? So ये इटली है पूरा, यहाँ से यहाँ तक. छोटा सा देश यहाँ पे स्विट्जरलैंड, वहां पे मेजरली जो स्विट्जरलैंड है वो पूरा का पूरा एल्प्स पे ही है. एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, parts of some parts of Germany, right? And here France and then Italy. So these are Alps, right? So it's a watershed of Switzerland. इसको watershed of Switzerland भी बोलते हैं. The highest mountain in Alps is Mont Blanc. Mont Blanc, इसको लिखेंगे माउंट ब्लांक. In French, blanc is white and mount is mountain. So white mountains, Mont Blanc is the highest point in Alps, right? So Mont Blanc is here. I'll tell you, just near the border of France and Switzerland, right? So यहाँ पर है Mont Blanc. ठीक है, उसके नीचे आते हैं, यू विल सी पायरेनीज, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर्स पे पायरेनीज. होप यू कैन लोकेट. साउथ फ्रांस में बिल्कुल नेचुरल बॉर्डर्स बनाते हैं फ्रांस और स्पेन के बीच में. ठीक है. वेस्ट में आते हैं पोर्चुगल और स्पेन के वेस्ट में दीज आर कैंटाब्रियन माउंटेन्स. पायरेनीज के जस्ट वेस्ट में कैंटाब्रियन माउंटेन्स एंड पायरेनीज बिल्कुल साथ साथ है. ईस्ट वेस्ट माउंटेन्स है दोनों, कैंटाब्रियंस एंड पायरेनीज. ओके. देन स्पेन के ही साउथ में अगर आप देखेंगे तो दो माउंटेन्स है, मैंने आपको बताया था. मैं सियरा नेवाडा बताऊंगा, तो सियरा नेवाडा यहाँ पे भी है. सियरा नेवाडा एंड सियरा मोरेना. तो साउथ ऑफ स्पेन में दो पैरेलल माउंटेन चेंज चल रही हैं, सियरा मोरेना एंड सियरा नेवाडा. ठीक है. तो ये दो माउंटेन्स हैं. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ स्पेन इज गादलक्विर, which flows between these mountains. So river Guadalquivir, it flows between Sierra Morena and Sierra Nevada. So this Sierra Nevada is different from Sierra Nevada in US. Okay. Then ये हो गया पूरा Iberian Peninsula. ये पूरा Iberian Peninsula है. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इटली में. The mountains are Apennines mountains running from north of Italy to the south of Italy. रोम जिसके ऊपर है. These are Apennines mountain ranges. Apennines को आप मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट. Apennines क्यों इंपॉर्टेंट है? मैक्सिमम मार्बल जो है, जो व्हाइट मार्बल जिसको हम इटालियन मार्बल भी बोलते हैं, जो इटली का फेमस है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Apennines माउंटेन रेंजेस. ठीक है. सो Apennines आर इंपॉर्टेंट. राइट. नेक्स्ट इज दी, जैसे यहाँ पर एल्प्स हैं वैसे ही क्रोशिया और सर्बिया, और यहाँ पर दो छोटे छोटे देश हैं, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, राइट हियर. सो वहां पर कवर करते हैं दिनारिक एल्प्स. तो पार्ट ऑफ क्रोशिया, सर्बिया एंड बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, दीज आर दिनारिक एल्प्स. ओके. सबसे बड़े और लंबे चौड़े माउंटेन्स अगर आप बोलोगे ईस्टर्न यूरोप के, तो वो है कार्पेथियन माउंटेन्स. यहाँ पर कार्पेथियन है. साउथ ऑफ पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन एंड रोमेनिया, चार देशों को कवर करते हैं बड़े बड़े. ठीक है. पोलैंड, स्लोवाकिया, यूक्रेन एंड रोमेनिया एंड पार्ट ऑफ चेक ऑल्सो. तो दीज आर कार्पेथियन माउंटेन्स. यूक्रेन में से काफी पार्ट आता है, राइट. सबसे ईस्टर्न मोस्ट है कॉकसस. कॉकसस जॉर्जिया में है. कॉकसस माउंटेन, जॉर्जिया एंड अजरबैजान. सो दोनों स्टेट्स को कवर करेंगे, जॉर्जिया एंड अजरबैजान. दीज आर कॉकसस रेंज. बेसिकली नेचुरल बाउंड्रीज हैं ये यूरोप और एशिया के बीच में है. यूरोप और एशिया को भी अलग करते हैं कॉकसस माउंटेन. ठीक है. यूराल माउंटेन्स मैं एशिया में दिखाऊंगा.
ठीक है, यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज है नहीं यहाँ पे यूराल माउंटेन्स। नेक्स्ट इज पिंडस माउंटेन्स इन ग्रीस। पिंडस, यहाँ पर भी लाइमस्टोन बहुत है इन पिंडस, known for limestone and the principal mountain chains of Greece। ठीक है, नेक्स्ट बाल्कन। बाल्कन जो बाल्कनाइजेशन भी बोलते हैं या बाल्कन कंट्रीज भी बोलते हैं या बाल्कन पेनिनसुला भी बोलते हैं। आई विल शो यू व्हाट इज वेयर इज बाल्कन पेनिनसुला। मैंने हालांकि इसमें दिखाया नहीं है। दिस होल पेनिनसुला इज बाल्कन पेनिनसुला। अगर आप इटली के ईस्ट में देख रहे होंगे, जिसको मैं येलो से कलर कर रहा हूं, दिस इज होल ऑफ बाल्कन पेनिनसुला। रोमानिया को छोड़कर सर्बिया, क्रोशिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सारा का सारा बाल्कन पेनिनसुला है, राइट। सो एड्रियाटिक सी, यहाँ पर ये एड्रियाटिक सी है दिस वन, और एड्रियाटिक सी के ईस्ट में ये सारा बाल्कन पेनिनसुला है, राइट। सो दिस इज बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला एक बड़ा रीजन है, उसके अंदर बाल्कन माउंटेन्स हैं जो कि सर्बिया से स्टार्ट करते हैं और बुल्गारिया में फिनिश करते हैं। इसका जो एक कॉर्नर है दैट इज इन ब्लैक सी, और सर्बिया से ये स्टार्ट हो रहे माउंटेन, सर्बिया एंड बुल्गारिया, इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन बाल्कन माउंटेन्स। तो ये बाल्कन कंट्रीज हैं, सारी की सारी बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट है, ठीक है। सो दिस वाज यूरोप, ओके। नाउ लास्ट वन इज एशिया। First of all, I'll do the Ural Mountains. I'll show you the Ural Mountains in Asia. ठीक है, so these are the Ural Mountains। अगर आप देख पा रहे हैं तो जो ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं राइट नीचे तक, these are Ural Mountains। तो ये ब्लैक स्पॉट्स जो हैं ये Ural Mountains हैं। Actually, the separation between Europe and Asia, these are the Ural Mountains, which are the natural boundaries between। हम जनरली जो डिवाइड करते हैं तो इधर एशिया है और इधर सारा का सारा यूरोप है, ठीक है। सो यूराल माउंटेन्स फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ठीक है। बहुत हाइट नहीं है यूराल माउंटेन्स की, 500 से 800 मीटर के बीच में हाइट है यूराल माउंटेन्स की, एंड दीज आर द बाउंड्रीज बिटवीन एशिया एंड यूरोप। इंपॉर्टेंट चीजें हैं रशिया के अंदर, लाइक वर्खोयांस्क। So Verkhoyansk mountains in the east of Russia, northeast of Russia, Verkhoyansk, और सबसे ठंडी जगह जो है in the northern hemisphere, this is in Verkhoyansk। The Verkhoyansk city is there, जहाँ पर सबसे ठंडी जगह है in the northern hemisphere, right? So it is in the northeast of Russia। These are huge mountain ranges, Verkhoyansk, और यहाँ पर मेजॉरिटी जो है यहाँ पर रशिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, लैब्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, ज्यादातर जो रशिया की हैं वो सारी वर्खोयांस्क में हैं, एंड ह्यूज ग्लेशियर्स आर देयर इन वर्खोयांस्क रेंजेस। उसके बाद ही रशिया के कुछ और छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस, वन इज कोलियामा। कोलियामा बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है रशिया का। उसके नीचे स्टैनोवोय। स्टैनोवोय एक आर्क शेप माउंटेन रेंजेस हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो स्पॉट्स हैं ब्लैक ब्लैक, ये कुछ इस तरह से स्टोनवॉय, कोलियामा, स्टोनवॉय एंड याब्लोनोवी। याब्लोनोवी, स्टोनवॉय एंड कोलियामा, ये तीनों ब्रदर रेंजेस बोलते हैं इनको। तो ये साथ साथ डेवलप्ड हैं, इनकी हिस्ट्री भी बहुत सिमिलर है, तो ब्रदर रेंजेस बोलते हैं कोलियामा, स्टोनवॉय एंड याब्लोनोवी, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मंगोलिया में। मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया, राइट। मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया के बीच में ये माउंटेन्स हैं, आर अल्ताई माउंटेन्स, ठीक है। सो अल्ताई माउंटेन्स आर इन द नॉर्थ ऑफ तिएन शान माउंटेन्स। यहाँ तिएन शान माउंटेन्स है वो मैं समझाऊंगा। उसके जस्ट नॉर्थ में पार्ट ऑफ चाइना इवन, राइट। तो चाइना आई मिस्ड, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान एंड रशिया, तीनों को बॉर्डर कर रहे हैं अल्ताई माउंटेन्स, ठीक है। और इसके जस्ट ईस्ट में जहां पर चाइना का नॉर्थ ईस्ट है बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो दीज आर द ग्रेट खिंगान माउंटेन्स। सो ग्रेट खिंगान है और लोअर खिंगान माउंटेन्स है। लोअर खिंगान यहाँ पर है, दीज आर लोअर खिंगान, और ये है ग्रेट खिंगान, लोअर खिंगान। इंपॉर्टेंट क्यों है लोअर खिंगान? बिकॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स पासेस थ्रू इट, दैट इज द अमूर रिवर, विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Mongolia over here,
राइट, उसके बाद रशिया में भी ट्रैवल करती है और रशिया और चाइना के बॉर्डर के साथ साथ ट्रैवल करती है, एंड इट गोज अक्रॉस द ग्रेट खिंगान माउंटेन्स एंड देन here in the Sea of Japan. So Amur River, it is the 10th largest river in the world. काफी लंबी नदी है. It passes through the Great Khingan Mountains. The most important thing in Asia is the two knots of Asia. The two knots मतलब जहाँ पे गांठ, जहाँ पर बहुत सारे हाईलैंड्स, बहुत सारे माउंटेन्स आकर मिलते हैं, those are knots, या आप बोल सकते हैं वहां से बहुत सारे माउंटेन्स निकलते हैं. ठीक है. So अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो दो नॉट्स आपको दिख रही हैं, एक तो ये है और एक ये है, राइट. सो टू नॉट्स आर देयर, वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन, राइट. सो दीज आर नॉट्स. ठीक है. दिस वन इज कॉल्ड द पामिर नॉट. पामिर इज एक्चुअली द प्लेट्यू. इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे ऊंची प्लेट्यू है, एंड इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नॉट ऑफ ऑल दीज माउंटेन रेंजेस कमिंग आउट ऑफ पामिर. तो पामिर प्लेट्यू से बहुत सारे आपको माउंटेन रेंजेस निकलते हुए दिखेंगे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पामिर नॉट. नेक्स्ट वन इज द आर्मेनियन नॉट. यहाँ पे एक छोटा सा देश है आर्मेनिया, राइट. सो यू विल सी दिस आर्मेनियन कंट्री. अगर आप देख पाएंगे तो कैस्पियन सी के वेस्ट में दिस इज आर्मेनिया. आर्मेनियन नॉट इसको बोलेंगे, आर्मेनियन प्लेट्यू है बेसिकली, अगेन लाइक पामिर, आर्मेनियन नॉट. और यहां से भी बहुत सारे माउंटेन्स निकलते, या आप बोल सकते हैं कॉन्फ्लुएंस कर रहे हैं या निकल रहे हैं. ठीक है. तो पामिर नॉट एंड आर्मेनियन नॉट, दो नॉट्स इंपॉर्टेंट है. लास्ट वी वर डिस्कसिंग वाज अल्ताई माउंटेन्स. अल्ताई माउंटेन्स के बाद हम लोग देखते हैं पामिर नॉट. पामिर नॉट से पहला जो माउंटेन निकलता है वो है तिएन शान. तिएन शान और द ग्रेट तिएन शान, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना कवर करता है. तिएन शान नॉर्थ वेस्ट चाइना एंड किर्गिस्तान. तो दो कंट्रीज बेसिकली अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं यहाँ पर, दीज आर तिएन शान माउंटेन्स. नॉर्थ में तिएन शान है और साउथ में यू विल फाइंड कुनलुन रेंजेस, राइट. तो कुनलुन रेंजेस, कुनलुन माउंटेन्स कमिंग आउट ऑफ द सेम पामिर नॉट, राइट. ये तिएन शान क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर तारिम बेसिन है. in the north of Tarim Basin, Tian Shan and many small and big tributary, many small and big streams of or rivers are coming out of Tian Shan. ठीक है. वैसे ही कुल्लुन, the north of Tibetan Plateau is Kunlun ranges. This is Kunlun range, right? ठीक है. So इसके बीच में this is Tarim. Tarim desert भी बोलते हैं इसको. ये तारिम का डेजर्ट एरिया है. तो ये तारिम डेजर्ट है, उसके नॉर्थ में तिएन शान है. तिएन शान के फुटेज में यू विल फाइंड एग्रीकल्चर, और कुनलुन रेंजेस के आसपास पूरा का पूरा ये एग्रीकल्चर लैंड है. दिस इज होल ऑफ एग्रीकल्चर. ये पूरा चाइना का एग्रीकल्चर, जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे होता है. चावल बहुत होता है यहाँ पर. ठीक है. तो तारिम डेजर्ट के नॉर्थ में तिएन शान एंड साउथ में कुनलुन. नेक्स्ट वन यू मस्ट हैव सीन हिमालयाज. हिमालयाज बिल्कुल पामिर से ही निकल रहे हैं और पूरा कवर करते हुए इंडिया को एंड गोइंग अप टू अरुणाचल. ठीक है. तो हिमालयाज में ऑलरेडी एक सेशन में कवर कर चुका हूं. ठीक है. हिमालयाज के नॉर्थ में इन तिब्बत यू हैव द कैलाश रेंज. सो जस्ट हिमालयाज के नॉर्थ में पैरेलल टू हिमालयाज यू कैन मार्क अ स्मॉल रेंज, कैलाश रेंज, जहां पर मानसरोवर लेक भी है. ठीक है. जहां पे हिमालयाज खत्म होते हैं वहां पर एक इस तरह का बेंडेड माउंटेन रेंज है, राइट. इट्स लाइक अ हेयर क्लिप. ठीक है. तो हेयर क्लिप बेंड भी बोलते हैं इसको. It is Arakan Yoma. Arakan Yoma, the west of Myanmar, north and west of Myanmar. This is Arakan Yoma. ठीक है. और उसके जस्ट नीचे the mid of Myanmar, म्यांमार का जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, this is Pegu Yoma. Pegu Yoma starts from here, right, in the north of Myanmar and goes to the southeast of Myanmar. ठीक है. साउथ ईस्ट तक जाते हैं म्यांमार के. पेगु योमा इंपॉर्टेंट है. पेगु योमा वाई? बिकॉज इरावाडी रिवर, जो इरावाडी रिवर है, इट फ्लोज बिटवीन पेगु योमा एंड अराकान योमा. इरावाडी और एक और नदी इंपॉर्टेंट है म्यांमार की, विच इज सितांग. सो बोथ द रिवर्स आर इंपॉर्टेंट इन म्यांमार, which are parts of the
these both mountain ranges, Arakan Yoma and Pegu Yoma. Arakan Yoma का extension आपको देखने मिलता है नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में. Those are missing in the map, but I'll show you over here. ठीक है. So इनके जो extension है अराकान योमा का, उसी को बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं. वो extended mountains हैं basically, और वहां पर भी बहुत सारी hills हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. So those are extension of अराकान योमा. So ये बात हो गई हिमालयाज की और कैलाश रेंज, अराकान योमा और पेगु योमा दोनों म्यांमार में. उसके बाद थोड़ा वेस्ट में आते, पामिर से एक और माउंटेन रेंजेस निकल रही है, सुलेमान. सुलेमान नॉर्थ पाकिस्तान, एंड इंपॉर्टेंट पास इन सुलेमान इज खैबर. जो सुलेमान रेंजेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में जाती हैं. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने का एक इंपॉर्टेंट पास खैबर, विच इज इन सुलेमान रेंजेस. ठीक है. इसका नॉर्थ प्रोविंस खैबर पख्तूनवा भी है, जो पाकिस्तान में भी आता है, कुछ उसका पोर्शन खैबर पख्तूनवा का अफगानिस्तान में भी आता है. ठीक है. तो सुलेमान रेंजेस, उसके बाद सुलेमान जहां पर खत्म होती है पाकिस्तान में, और वहीं से शुरू नई रेंजेस होती है विचार किरथार रेंजेस, साउथ ऑफ सुलेमान. सुलेमान के साउथ में किरथार है. ठीक है. तो किरथार रेंजेस, कई बुक्स में लिखा होता है कि सुलेमान रेंजेस को ही साउथ में किरथार बोलते हैं, बट बीच में कुछ लोलैंड्स हैं, इसलिए आई कॉल इट अ डिफरेंट रेंज. सुलेमान से अलग किरथार. किरथार का एक और एक्सटेंशन जो बिल्कुल कोस्ट को टच करता है, विच इज मकरान. साउथ पाकिस्तान एंड द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान, वहां पर है मकरान माउंटेन्स. दिस इज द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान. यहाँ पर मकरान माउंटेन्स है, जो कराची तक, जो कराची के जो वेस्टर्न पोर्शन है, यहाँ पर कराची है, द कोस्टल सिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके वेस्ट में मकरान माउंटेन्स है. इट इज अगेन द एक्सटेंशन ऑफ किरथार रेंजेस. राइट. नेक्स्ट, one of the important mountains coming out of Pamir is Hindu Kush. This one is Hindu Kush, if you can see यहाँ पर. These are Hindu Kush, Afghanistan, Turkmenistan and parts of Uzbekistan. So सब काफी wide mountain range है, broad mountain range है Hindu Kush. ठीक है. So पामिर से निकल रही है, और एक important चीज, हिंदू कुश जहां पे खत्म होती है, वहीं से एल्बुर्ज माउंटेन रेंजेस स्टार्ट होती है. तो एल्बुर्ज आर इन ईरान एंड टचिंग द आर्मेनियन नॉट. तो पामिर नॉट और आर्मेनियन नॉट का कनेक्शन माना जाता है हिंदूज और एल्बुर्ज. तो हिंदू कुश और एल्बुर्ज, तो ये दोनों कनेक्शन है एक तरह से. यहाँ तक हिंदू कुश खत्म होता है, यहाँ से एल्बुर्ज शुरू होता है, जो कि पूरा नॉर्थ ईरान में जितने भी आप डॉटेड लाइंस देख रहे होंगे यहाँ पर, वो सारा एल्बुर्ज माउंटेन्स हैं. नॉर्थ ऑफ ईरान में माउंटेन्स है और साउथ ऑफ ईरान में माउंटेन्स है, विच आर जागरोज माउंटेन्स. तो नॉर्थ में ईरान के एल्बुर्ज है और नीचे में जागरोज है. और एल्बुर्ज की इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि हिंदू कुश और पामिर नॉट को, हिंदू कुश को पामिर नॉट से कनेक्ट करता चलता है. बीच में थोड़ा सा लोलैंड है तुर्कमेनिस्तान के अंदर, उसके बाद वापस से शुरू हो जाता है. ठीक है. एक चीज बताना भूल गया, जो ये माउंटेन्स हैं, तियन शान, कुल्लुन शान बोलते हैं इसको, कुल्लुन रेंजेस को कुल्लुन शान बोलते हैं. तियन शान मैं बोल रहा था, तियन शान है. ठीक है. देन राइट. सो शान का मतलब होता है माउंटेन. ठीक है. सो शान मीन्स माउंटेन्स. तो बहुत सारे माउंटेन्स के आगे आप शान लगा हुआ देखेंगे. सो शान मीन्स माउंटेन. ठीक है. तो एल्बुर्ज. अब हम आते हैं आर्मेनियन नॉट पे. आर्मेनियन प्लेट्यू है यहाँ पर. आर्मेनिया कंट्री है छोटी सी यहाँ पर, कैस्पियन सी के वेस्ट में. ठीक है. सो दिस आर्मेनियन नॉट से भी बहुत सारे माउंटेन्स निकल रहे हैं. वन ऑफ दिस इज पोंटिक माउंटेन्स. देन वन आई टोल्ड यू इन ईरान, दैट इज एल्बुर्ज, व्हिच इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिंदू कुश ओनली, एंड एल्बुर्ज एंड हिंदू कुश आर गेटिंग कनेक्टेड. सो पामिर और आर्मेनियन नॉट कनेक्ट हो रही है. तो ये एल्बुर्ज है, ये भी आर्मेनियन नॉट से निकल रहा है. और एक जागरोस माउंटेन जो पूरा ईरान कवर करता है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इराक भी कवर करता है. ठीक है. ईरान, नॉट सीरिया. ठीक है. सीरिया नहीं, इराक, टर्की, दिस इज टर्की एंड ईरान. तो अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एंड इट फॉर्म्स द नेचुरल बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड इराक. एक नेचुरल बॉर्डर है, इसको क्रॉस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टिल ये जागरोस माउंटेन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ माइग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस इराक टू ईरान थ्रू दी जागरोस माउंटेन. बहुत सारे पासेस हैं जहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं और इलीगल माइग्रेशन हो रहा है. That is why Zagros mountain is important. ठीक है.
आप जगरोस माउंटेन को ये भी बोल सकते हैं कि ये मकरान को कनेक्ट करता है आर्मेनिया से। तो मकरान जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, साउथ ऑफ पाकिस्तान, कोस्टल पाकिस्तान, और यहाँ से जागरोस स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों तरफ से ये एक तरह से थ्रेड बना रहा है, हिंदू कुश से अल्बुर्ज बना रहा है और फिर यहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद जागरोस मकरान से कनेक्ट कर रहा है। तो मकरान और जागरोस भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। सुलेमान, किरथार, मकरान, जागरोस, अल्बुर्ज और हिंदू कुश, ठीक है। देन दिस पॉन्टिक माउंटेन रेंज इज देयर। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में देख रहे हैं आर्मेनिया के, तो पॉन्टिक माउंटेन रेंजेस है विच आर गोइंग टुवर्ड्स टर्की। टर्की का जो कोस्टल एरिया है, दिस इज पॉन्टिक माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ से भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम द कंट्रीज लाइक सीरिया, और वो इसको क्रॉस करके, पॉन्टिक माउंटेन्स को क्रॉस करके दे आर ट्राइंग टू एंटर the countries like Russia, Ukraine and Kazakhstan, ठीक है। So Pontic mountain ranges, then one more range is coming out of Armenian north, that is Taurus mountain, right, again going towards Turkey, ठीक है। ये important है because this goes up to Mediterranean coast, हालांकि मैंने थोड़ा सा कम दिखाया है, it is going up to Mediterranean coast, ठीक है, यहाँ तक जाता है। So this is Taurus mountain ranges, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ऑफ आर्मेनियन नॉर्थ इज टॉरस, अगेन टर्की का बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, यहाँ पे भी टर्की को पॉन्टिक कवर कर रहा है, और पूरे ईरान को कवर कर रहा है, एल्बुर्ज और जगरोज, राइट। सो आई होप यू कैन आइडेंटिफाई द होल रीजन, पूरे रीजन को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जस्ट आई फिनिश इट ऑफ, मैं यहाँ पे इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड गुड नाइट, टेक केयर।